السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی سی او ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے، اور ماشاءاللہ سے اس فیلڈ کا جو ایکسپیرینس ہے مور دین 30 ایئرز ہے، اور انہوں نے اگر میں پاکستان سندھ کی ٹورزم کی بات کروں، نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل کافی کام کیا ہے، پوری دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان سندھ بہت خوبصورت ہے۔ تو میں آج کی ریئل پاکستانی کی بات کر رہی ہوں، ون اینڈ اونلی فیاض علی شاہ صاحب، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی فیاض علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بلایا مجھے۔ بھائی فرسٹ آف آل کانگریچولیشنز، ماشاء اللہ سے بھی ریسنٹلی جو ایم او یو سائن ہوا ہے ایئر سفاری پر پاکستان میں پہلی دفعہ، تو کیا کہیں گے؟ اور ہمیں اس بات کی بےحد خوشی ہے اور ہم تھوڑے سے ایکسائٹیڈ بھی ہیں۔ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ کراچی سے موجودہ روز سیم ڈے آپ ٹرپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے سکھر کی ٹرپ کرنی ہے اور اس کو ایکسپلور کرنا ہے تو سیم ڈے ایزیلی آپ بک کر سکتے ہیں۔ دین پورا کراچی جو 350 کلومیٹر ہمارا پورے سندھ کا کوسٹل ایریا ہے، تو آپ کو سفاری بائی نائٹ بھی آفر ہم کر سکتے ہیں۔ ویری نائس۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہم اس کو آن ایئر کریں گے، اور جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو دس ون آف دی ٹورسٹ اٹریکشن جو ہم نے کوشش کی ہے کہ عوام کو پیش کی جائے، کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل جنریشن کا ٹائم ہے، تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ جتنے بھی ریزرویشن سے انفارمیشن ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہماری پارٹنر کمپنی ہے اس کے بھی پروفائل کو ہم نے اس کے اوپر ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کی آن لائن بکنگ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، بٹ کیونکہ یہ ایک اسپیشل چارٹر فلائٹس ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں ون آن ون کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو بھی سمجھا جائے، وہ کہاں جانے چاہتا ہے، کس ٹائم جانے چاہتا ہے۔ دیکھیں، کسٹمر سروس کمز فرسٹ، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو اس کی بکنگ بھی بڑی ایزی ہے، اس کا آپریشن بھی بہت ایزی ہے، آپ کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو اس پہ انشور کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کو انوگریٹ کریں گے، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم لنک کریں 14 اگست کی جشن آزادی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ عنقریب کراچی کے بڑا عوام۔ خوبصورت تحفہ ہے۔ جی بالکل، تو یہ کہ ہم چھوٹی سی کاوش ہے ہماری ٹرین سفاری، آج تک ہم نے پاکستان میں نہیں سنا ہوگا، میں بھی ایک وقت میں لنڈی کوتل کی طرف ایک چلتی تھی اسٹیم انجن سفاری، مجھے اتفاق ہوا تھا اس کے اوپر ٹریول کرنے کا۔ آئی ریئلائز کہ ہمارے پاس بھی سملر فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ ایک وقت میں تھرپارکر کے لیے لوکوموٹیو جو ہمارے اسٹیم انجن تھے وہی چلتے تھے، تو میری کوشش تھی کہ ہم اسی کو اسٹیم انجن کے ساتھ ہی آپریٹ کریں، مگر کیونکہ وہ فیز آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اس تھر ڈیزرٹ ٹرین سفاری یہ تھی ہمارا پہلا انیشیٹو، جو کراچی سے شروع ہوتی ہے اور یہ آخری سٹاپ کرتی ہے پاکستان انڈیا کے بارڈر کے اوپر۔ اور اس میں جو زیادہ ایکسائٹمنٹ تھا لوگوں کا وہ یہی تھا کہ یہ وہی بارڈر ہے جہاں سے پارٹیشن کے بعد جو ہمارے کئی فیملیز سے، جو پاکستانی مائیگرنٹس سے، جو پاکستانی ہوئے بعد میں، وہ اسی رستے سے آئے تھے۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ کئی ریناؤنڈ لوگ ہیں کراچی کے جنہوں نے اسی بارڈر پہ اپنے بچپن میں ٹائم گزارا تھا، اس ماروی ریلوے اسٹیشن کہلاتا ہے۔ تو جب ہم نے فرسٹ ٹرین سفاری وہاں لے کے گئے تو لوگ کافی ایکسائٹیڈ تھے۔ آپ یہ حیران ہوں گے کہ صرف وہ لوگ ایکسائٹیڈ نہیں تھے، کراس دا بارڈر وہ بھی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ کیا چیز ہو رہا ہے، اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں جس میں مرد، خواتین، بچے، بوڑھے سبھی تھے۔ they were so happy, they were chanting سلوگنس پاکستان کے لیے، اور ہمیں جو وہاں کی اتھارٹیز ہیں بارڈر کے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، انہوں نے ویلکم کیا۔ اس چیز نے ہمیں حوصلہ دیا کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ کراچی کی عوام جس نے کبھی تھرپارکر وزٹ نہ کیا ہوگا، وہ تھرپارکر میں ویریس ایکٹیویٹی کر رہے تھے۔ تو نہ صرف ہم بارڈر تک جاتے ہیں، ایک پرچی جی ویری ایک مڈ پوائنٹ ہے چھور کے اوپر، چھور کے اوپر ہم جا کے ان کو ایک کمپلیٹ پیکج دیتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، فوک میوزک ہے، ان کو ڈنر بھی کروایا جاتا ہے، سائٹ سینگ بھی کراتے ہیں، سن سیٹ ویو آتا ہے، اس کے بعد کیمل رائڈس ہوتے ہیں، اور موٹر بائک رائڈس بھی ہوتے ہیں۔ جب کراچی کی عوام نے دیکھا کہ دس پیکج انکلوڈس اے لاٹ، تو ہمیں حوصلہ ہوا، لوگوں نے افورڈیبل بھی ہے، جا سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اس میں افورڈیبلٹی کی بھی بات کر لوں، اچھا ہوا آپ نے یہ مجھے ہائی لائٹ کیا۔ میم یہ اٹس این ایکسپینسو ایڈونچر، ایکسپینسو ان دا سینس کہ ٹرین 48 آورس تک آپ کے ساتھ انگیج رہتی ہے۔ ہم 2-3 بوگیز کو انگیج کرتے ہیں، جس میں 2 پیسنجر بوگیز ہیں، ایک ڈائننگ کار ہے۔
अब उस तमाम का खर्चा है, इंजन एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, सीएम साहब ने खसूसी हिदायत दी है कि इसको सब्सिडाइज करें, पब्लिक के ऊपर बर्डन ना डालें, बट अगेन पब्लिक को एक आप मौका भी दें कि वो इस तरह के एडवेंचर्स में जाए और एक्सप्लोर करे और अपनी टूरिज्म को भी प्रोमोट हो। तो हमने उसकी बहुत मिनिमल चार्जेस कस्टमर से लिए, रिमेनिंग वर एब्जॉर्ब बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, खास करके ताकि वो इनकरेज कर सकें अपने लोकल एग्जैक्टली। अच्छा, इसका हमें फ़ायदा ये हुआ इस एनकरेजमेंट का कि हम मुसलसल डिमांड आती गई और हम ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से आ जी एग्जैक्ट मैम, पाकिस्तान से पूरे से आए, पंजाब का ज़्यादा डिमांड था, बट आप हैरान होंगे कि इसके ऊपर हमें यूके से भी लोग आए। अच्छा, वेरी नाइस। देयर वर द फैमिली जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स थे, जिनकी मिसेज जो थी वो एक प्रोफेसर थी और यूके नेशनलिटी थी, शी ट्रेवल विद अस और वो बड़ी एक्साइटेड थी। हमारे एक दोस्त हैं कैप्टन, तो उनकी वाइफ जर्मन है, दे वर एक्साइटेड टू गो देयर और उन्होंने एक्सप्लोर किया। तो इसलिए ये दिस प्रोडक्ट बिकम्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट। डिमांड इतनी आई कि एक के बाद एक हम 6 ट्रेन सफारीज एक साल में ऑपरेट कर गए फॉर थरपारकर। अब वहाँ रुके नहीं, थरपारकर इज एक्सप्लोर, जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे थर बदलेगा पाकिस्तान, थरी ख़वातीन, थरी लोग, बच्चे, बूढ़े, दे वर एक्साइटेड ऑल्सो, उनके लिए रोज़गार पैदा हुआ। हमने जहाँ स्टे किया वहाँ के रेस्टोरेंट्स, वहाँ की शॉप्स, वो सब एक्टिवेट हो गए। तो इसको हमने एक तरह से लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, लोकल कम्युनिटी को। वहाँ से एक हौसला हुआ, तो हाँ, वी स्टार्टेड अ ट्रेन सफारी फॉर मोहनजोदारो। दिस वाज फर्स्ट टाइम अ ट्रेन सफारी वेंट टू मोहनजोदारो, कराची से। अदरवाइज कराची से लारकाना मोहनजोदारो के लिए कोई ट्रेन सर्विस नहीं होता है। तो हम जब लोगों को लेके गए तो इसके ऊपर हमारे पास यूके से बहुत बड़ी डिमांड आई। लेडीज अलोन, दे वांटेड टू गो एंड अच्छा, ये एक्सप्लोर। मुझे बता दें कि कौन सा, ये समर की बात करें, विंटर में ज़्यादातर ट्रैवलिंग कितना बेस्ट हो सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा। सिंध की या इवन मैदानी इलाके, सिंध है, पंजाब है, इसका टूरिज्म विंटर है। अच्छा, समर टाइम्स में लोग अवॉइड करते हैं और हम भी करते हैं, बट हम तो बहरहाल जाते हैं। तो इसका सिर्फ जो 6 to 7 मंथ्स का होता है। तो ये जो ट्रेन सफारी का हम फोकस करते हैं, तो हम नवंबर ऑनवर्ड करते हैं एंड वी गो अप टू द मंथ ऑफ मई तक हम चले जाते हैं। इस बार फिर हम जो शुरू अनाउंस करने जा रहे हैं, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। मोहनजोदारो या लारकाना है, इसकी विजिट इज द विंटर इज द राइट टाइम टू गो देयर। अगर हम ट्रेन के बजाय बाय रोड जाएंगे तो आपको फिर बहरहाल फैसिलिटीज़ तो अब काफ़ी हो गए हैं, हमारे कुछ रिजॉर्ट 7 में भी है। मंछर लेक आपका रस्ते में आता है, जो एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं दे आर मोहाना कहलाते हैं, जो फिशरमैन। अच्छा, बम्बोर, मैं बम्बोर गई हूँ, तो इसमें बम्बोर का जिक्र नहीं है। मैं अर्ज़ करता हूँ मैडम, अब मैं थोड़ा, चले अच्छी बात है, आपके इन क्वेश्चन से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं डायरेक्शंस भी बता दूँ। हाँ। ये जो हम गए इस वक्त थरपारकर, ये हमारा जाता है थरपारकर का एरिया अदर साइड ऑफ दी प्रोविंस, जो हमें, मैं गलत नहीं हूँ तो नॉर्थ की तरफ आता है। जब हम जाएंगे मोहनजोदारो की साइड पे, तो वो फिर अदर डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। कराची से आप जब निकलेंगे टूवर्ड्स ठट्टा, तो भंबोर आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा 65 किलोमीटर के ऊपर। भंबोर का जिक्र आई डोंट नो आपने कभी विजिट किया है? मैंने किया, इस वजह से तो मैंने नाम लिया। जी, बड़ा अच्छा किया आपने। देखिए, भंबोर हमारी वो हेरिटेज साइट है जो मोर देन 2000 ईयर्स की एक सिविलाइजेशन है। मोहम्मद बिन कासिम का भी मैंने देखा। एग्जैक्टली, ये हमारा वो पोर्ट है जो इस्लामिक वर्ल्ड का पहला पोर्ट था। इस्लामिक वर्ल्ड की पहली जो मॉस्क थी वो वहाँ पे बनी थी, और मोहम्मद बिन कासिम की जो आर्मी थी वो वहीं लैंड किया था। शाह साहब, क्योंकि हमारे जो आम है दुनिया भर में मशहूर है, और आपने ज़बरदस्त काम ये किया है कि आपने एग्जीबिशन करवा दी दुबई में, और हम ये चाहते हैं ऐसी एग्जीबिशन सिर्फ दुबई में नहीं हो, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस, डेफिनेटली आप लोग यकीनन उस पर काम भी कर रहे होंगे। और मैंने ये भी देखा है बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेट्स भी हैं जो स्पेशली फरमाइश करके पाकिस्तान से आम भी मंगवाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। देखें, सिंध एक कहूँ एक तरह से एक बहुत बड़ी मार्केट है मैंगोज़ की, बिल्कुल ख़ास, खसूसन एक सेंटर है तमाम इस मैंगो का प्रोडक्शन का। मोर देन 200 की वैरायटी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। हर साल वहाँ पे एक मैंगो फेस्टिवल भी होता है, जिसको हम कल्चरल फेस्टिवल के साथ मिक्स करते हैं। पर्पस ये होता है उसका कि अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, और जो एक्सपोर्टर है उसको भी ऑफ़र करें कि वो इस साल किस तरह से कितनी क्वांटिटी यहाँ से उठाएगा।
वेदर की वजह से कुछ अपना उसको इफ़ेक्ट आया है, बट अगेन सिंध का और पूरे पाकिस्तान का मैंगो पूरी दुनिया में मशहूर है और जाता है, आपको भी मालूम है। कैसे हो सकता है जी मैंगो का सीज़न हो और मैंगो की बात ना हो और उसका फेस्टिवल ना हो। तो जब हमने मीरपुर ख़ास में किया तो हमारे मिनिस्टर से जुल्फ़िकार अली शाह साहब वो भी मीरपुर ख़ास से बिलोंग करते हैं। तो हम एक इवेंट में जब गए दुबई तो हमने ऑफ़र किया वहाँ पे कि व्हाई कांट वी हैव अ मैंगो फेस्टिवल हियर। तो वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ और हमने विदिन 10 डेज़ टाइम वहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में एक मैंगो फेस्टिवल को स्पॉन्सर किया, जिसमें वो यूएई में जितने भी काउंसिल फॉरेन काउंसिल जनरल्स थे और पाकिस्तानी कम्युनिटी थी और कुछ जितने बिजनेसमैन थे सबको इनवाइट किया गया। वो इतना पॉपुलर हुआ कि इस साल फिर हमें जो ट्रेड कमिश्नर हैं वहाँ पे उन्होंने फिर कांटेक्ट किया कि इस साल भी आपने इसमें करना है। तो ऐसे कोई ओकेजन्स होते हैं जिस पे आप टोटली फोकस भी होते हैं कि हम अपना एक डेलीगेशन लेके जाएं, स्पेशली म्यूजिक की बात है, फूड की बात है, तो वो तो यकीनन आप लोग करते रहते होंगे पूरे साल में। बिल्कुल दोस्त से हमारा एक कैलेंडर होता है इवेंट्स का जो पूरे पाकिस्तान का होता है, एक्चुअली दिस नॉट इंडिविजुअल कैलेंडर, जिसमें मैंने शुरू में ही कहा था कि हम पूरे पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं एज अ होल। तो उसमें हम सर्टन मेजर एग्जीबिशंस हैं जिसमें वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट लंदन में होता है हर साल, इस साल भी नवंबर में फर्स्ट वीक में होगा। वहाँ पे पाकिस्तान पवेलियन क्रिएट होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एज अ सिंध हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम शुरू से जब जाते रहे तो एक तो हम अपनी प्रोडक्ट पास पर्टिकुलरली सिंध के आर्टिफैक्ट, सिंध की टूरिज्म पोटेंशियल वो दिखाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है, हमारी जो ख़वातीन अपना एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं, प्लस हमारी जो सिरेमिक बनता है हाला में, इसके अलावा जो थरपारकर में चीज़ें हम वो सारी चीज़ डिस्प्ले करते हैं। दिखाना ये चाहते हैं कि हम कितना इसमें रिच हैं, लोग कहाँ आ सकते हैं, क्या देख सकते हैं। सिर्फ हम सिंध नहीं करते हैं, बाकी प्रोमिसेस अपने अपने एरिया के टूरिज्म को प्रमोट करता है। तो ये एक पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन होती है। कुछ टाइम पहले तो हम अपने म्यूज़िकल ग्रुप्स ट्रूपे भी लेके जाते रहे, या फिर जो लाइव परफॉर्मेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट हम वो भी कोशिश करते हैं कि वहाँ पे आवाम की को दिखाया जाए। और बड़ी जो फॉरेनर हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसमें आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। आल्दो हर कोई कहता है कि एआई का ज़माना है, बट आई थिंक कि वो जो उस फनकार के हाथ क्रिएट करते हैं वो शायद ही कोई कर सकेगा। तो पर्पस ये होता है कि वो प्रोडक्ट, वो म्यूज़िक, वो फूड, मैंगो, ये सारी चीज़ें दिखा के हम पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज बाहर मुल्क में दिखाते हैं। अच्छा शाह साहब, माशाल्लाह हमने देख रहे हैं कि जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है नॉट सिंध ओवरऑल पाकिस्तान में ग्रो कर रही है। अच्छा वैसे ऐसे कौन सी इनिशिएटिव्स हैं या चीज़ें हैं दैट्स इन द पाइपलाइन जो आप फोकस भी हैं कि इंशाल्लाह अब तो ये साल आधा साल तो गुजर ही चुका तो अब जो है इंशाल्लाह आगे इस चीज़ को लेके के चलना है और करना है। नहीं, आपने सही कहा कि आधा साल गुजर गया, बट आपको ये भी बता दूं जो अभी हमने डिस्कस किया कि अब तो हमारा सीज़न शुरू होने जा रहा है। अच्छा वेरी नाइस। वी विल बी स्टार्टिंग आवर एक्टिविटीज़ वेरी फास्ट। अभी मैं क्विकली बता देता हूँ, जो कराची के लिए ख़ास हमने लाइनअप किए हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में मैडम हम आज़ादी ट्रेन चलाने लगे हैं फ्रॉम कराची टू थरपाकर, और ये हम सेलिब्रेट करेंगे। आपने अभी वर्ड यूज़ किया था, एक मार्का है प्लस सबसे पहले पाकिस्तान, ये जो भी, तो हम पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करेंगे इसमें। फिर हमारे पास कोस्टल बेल्ट के ऊपर मैंग्रोव्स का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो हम चाहेंगे कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ एसोसिएट करें, उनको दिखाएं कि मैंग्रोव्स का कितना बेनिफिट होता है। फिर उसके बाद हम स्कूल के बच्चों के लिए फील्ड ट्रिप कराने जा रहे हैं फ्रॉम कराची टू ठट्टा की तरफ। और ये उसमें कब है? ये हम कोशिश करेंगे कि जैसे स्कूल खुलते हैं, छुट्टियां ख़त्म होंगे, तो इमीडिएटली ये करा दिया जाए, क्योंकि फिर बच्चे एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे। अभी आपने जिक्र किया था बम्बोर का, तो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। फिर एक जो हम इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं, ट्रेन सफारी फॉर सक्खर। सक्खर खुद एक बड़ा एक तारीखी शहर है जिसमें लेंसडाउन ब्रिज बहुत तारीखी है, साथ ही साथ साद बेलो है, फिर हमारे सतियों का आस्थान है। उसी के ही एरिया में फिर हम कोडीजी चले जाते हैं, जो हमारा कोडीजी का फोर्ट है, और फिर खैरपुर का फेस महल आपने जानते हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो हम डे ट्रिप टू मोहनजोदारो भी कर सकते हैं, 1 आवर की ड्राइव पे है। इसके साथ साथ फिर आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हुकूमत पाकिस्तान का, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, जिन्होंने हमारे साथ लास्ट वीक मीटिंग करके ये शेयर किया आइडिया कि इंटरफेथ हार्मनी और रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जाए पाकिस्तान में।
सिंध बहुत रिच है इस मामले में, हम कोट करते हैं इस प्रॉमिस में हिंदू 90% हिंदू कम्युनिटी रिजाइड करती है इन थरपार का। कराची में आप देखेंगे तो कई आपको चर्चेज नज़र आएंगे और हमारे पास उनकी रिलीजियस हार्मनी है और वो अपने जितने भी इवेंट्स हैं वो करते हैं। फिर हमारे हिंदू टेम्पल्स भी हैं। लास्ट ईयर हमने एक आइडिया फ्लोट किया था कि सांता क्लॉज ऑन कैमल, अच्छा तो वो एक बड़ी एक यूनिक सी चीज़ आई थी। तो इस साल फिर मैंने जब उन कम्युनिटी के साथ शेयर किया है तो दे आर एक्साइटेड कि और क्या क्या हो सकता है। तो हमारी कोशिश है कि तमाम कम्युनिटीज़ को मिला के उनको एक हार्मनी तो ऑलरेडी है उसको प्रमोट किया जाए। टूरिज्म इज़ फॉर एवरीबडी। हमारी कोशिश होती है कि टूरिज्म की जितने भी सियाहत के मौके हैं वो सबको इक्वली दिए जाए। तो हम जब भी इवेंट करते हैं ख़ुसूसन तो हम तमाम कम्युनिटीज़ को ऑन बोर्ड लेते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान लेने जा रही है, हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करके कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में वैसे भी लाहौर में आपने देखा ननकाना साहब पे सिख यात्री आते हैं। ऐसा ही है। सिंध में अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ है, हिंदू यात्री आते हैं फ्रॉम इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे? ये इनके जो एक तो साधु बेला के ऊपर आए, फिर कुछ इनके मंदिर हैं थरपारकर की कोई तरफ। स्पेसिफिक मंथ होता है जी हाँ बिल्कुल मंथ है, मैं अभी कह नहीं पा रहा हूँ शायद कोई, क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर जो आए थे तो एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था। बट अनफॉर्चुनेट है कि उनको बड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड किस्म का लिमिटेड किस्म का वीज़ा दिया गया कि आप इस लिमिट में रहेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करें। सिंध से जो हिंगलाज माता का एक जर्नी होती है बलूचिस्तान, जो आई थिंक हिंदू कम्युनिटी में सेकंड लार्जेस्ट एक इवेंट होता अच्छा है। अजय, मुझे अब क्योंकि मंदिर की बात हो रही है, क्योंकि हम गए थे गवादर बाय रोड, तो जस्ट गॉट टू नो, मुझे मौका नहीं मिल सका। वहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है स्पेसिफिक, जब आप गवादर जाते हैं। ओके। गवादर से पहले ही, बिकॉज आप मंदिर की बात कर रहे हैं जी जी तो मेरे ख्याल से वो सिंध की टेरिटरी से थोड़ा बाहर हो जाता है। जी ऐसा ही है, बट हमारी कोशिश होती है कि इंटर प्रोविंशियल टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। उसके जो विजिटर होंगे ऑब्वियसली सिंध से आएंगे। सिंध बहुत बड़ी एक हमारी पॉपुलेशन है जो हिंदू कम्युनिटी है, जो यहाँ की लोकल आबादी के साथ सिंस एजिस सदियों से एक साथ रहते हैं हारमोनी के साथ। वो हमारे जो हमारे प्रोसेशंस होते हैं, ईद होती है या कहें आपके जो अपना त्यौहार होते हैं प्लस मुहर्रम है, दे पार्टिसिपेट। तो फिर जो हमारी कम्युनिटी है फिर वो उनके होली में और बाकी त्योहारों में, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरफेथ हार्मनी एंड रिलीजियस टूरिज्म। तो हम दुनिया को बताएंगे कि आप आइए, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, आप इन मंदिर्स को, इन चर्चिस को, इन जो भी बाकी बात लाइक मैं आपको शेयर करूं, 2024 में यहाँ पे बोहरा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का जो सैयदना है वो आए थे। वो मुहर्रम के लिए सेलिब्रेट मतलब ज्वाइन करने के लिए मोर देन 50,000 पीपल ट्रेवल फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड। जो बोहरा कम्युनिटी बाहर रहती है वो सब यहाँ आए, तो कराची में रहने की जगह नहीं थी। अच्छा, इसमें एक बात ऐड कर देते, क्योंकि हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात कर रहे हैं। फॉर डेफिनेटली जब आप ट्रैवल करते हैं तो उनको वीज़ा तो चाहिए होता है, तो इसमें भी आप लोग सपोर्ट करते हैं? मैडम देखें वीज़ा इशुएंस नहीं, सही कह रही है। हाँ। आपका क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है। ये वीज़ा का क्योंकि फेडरल मामला है, लेकिन फैसिलिटी का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फैसिलिटेशन वी आर देयर इन एनी केस। देखिए हमारी जिम्मेदारी है कि हर विजिटर, एवरी विजिटर जो भी प्रॉमिस ऑफ सिंध में आएगा वो हमारी जिम्मेदारी में, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसकी अकोमोडेशन, उसकी असिस्टेंस और उसकी अपना ख़ास करके अगर उसमें कोई वीज़ा का इशू आता है तो वी आर द कोऑर्डिनेटिंग प्लेटफॉर्म। हमारा ऑफिस हमेशा ओपन होता है। मेरा नंबर, हमारे ऑफिस के नंबर अवेलेबल हैं वेबसाइट्स के ऊपर। हम कोऑर्डिनेट करते हैं फेडरल के साथ, पीटीडीसी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ, इवन इमिग्रेशन आल्सो। वहाँ कभी इशू आ जाते हैं तो दे कॉल अस आल्सो कि इसका क्या करें, वी आर देयर। तो ये हुकूमत का इस वक्त प्रायोरिटी है कि जितना आप लोगों को जो विजिटर है उसको कंफर्ट लेवल पे रखेंगे और उसको कॉन्फिडेंस देंगे तो वो वर्ड ऑफ माउथ जब वापस जाएगा तो ऑब्वियसली फिर कोशिश होगी कि लोग भी हमारे पास ज़्यादा। इंटरनेशनल टूरिज्म की तो मुझे जस्ट वांट टू नो, क्योंकि हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारी कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज हैं, मैं स्पेशली चलें स्पेसिफिक कराची की बात करती हूँ क्योंकि सिंध में आता है, तो इस तरह की कोई चीज़ होती है आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि वहाँ का कोई ग्रुप में इस तरह की सॉर्ट ऑफ उनको प्रोटोकॉल को रखते हुए, क्योंकि माशाल्लाह इतनी ग्रो कर चुकी है सिंध में टूरिज्म,
تو سب چیزیں آن لائن ہے, ایوری تھنگ موجود ہے جو اکارڈنگلی ایک انٹرنیشنل پروٹوکولز ہوتے ہیں, تو اس کو کوئی آپ نے وزٹس کرائے ہوں اور لے کے گئے ہوں؟ دیکھیں انڈیویجول کیپیسٹی میں تو کراچی اٹ سیلف کو ایکسپلور کر چکے ہوئے ہیں, قائد ہاؤس میوزیم ہے, موٹا پیلس ہے اور باقی جگہ ہیں, تو دے آر آلریڈی وزٹنگ اور ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب اپنا یو ایس ایمبیسڈر ارائیوڈ کراچی میں فرسٹ ٹائم, تو انہوں نے اپنی کیمپین شروع کی موٹا پیلس سے, تو وی ریسیوڈ ہم اینڈ وی اکوموڈیٹ. آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں ان کو کلیکٹیولی بھی کچھ مواقع دینے چاہیے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس ونٹر سیزن میں ہم ان کو ہیریٹیج سائٹس کے اوپر لے کے جائیں, ان کی کانفرنسز کروائیں یا ان کو زیادہ سے زیادہ معلومات دیں, تاکہ جب وہ اپنے اپنے ملکوں میں کمیونیکیٹ کریں تو وہ بتا سکیں کہ اس پرومس میں کتنی زیادہ ہیریٹیج ہے, کتنا پوٹینشیل ہے اور اس کو کیسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا بالکل بجا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ حکومت پاکستان, کیونکہ اگین ان کو سرٹن پروٹوکول میں ٹریول کرنا ہوتا ہے, تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے اسی ونٹر میں. ویری نائس. اچھا شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ابھی آپ نے کہا کہ بھائی ڈیفینیٹلی ہمارا تو ابھی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے, تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور جو ڈیفینیٹلی جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں سندھ میں, انہوں نے سب نے پلان تو بنا ہی لیے ہوں گے, تو ان کے لیے کیا کہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں تو ونٹر سیزن کی, تو پنجاب میں اور سندھ کا ایک سیزن جو سٹارٹ ہوئے گا, نہ صرف پاکستان پر ملک کے باہر آلسو. ونٹر سیزن میں نارتھ بند ہو جائے گا آبویسلی سنو فال کی وجہ سے, تو میں تو ان کو سب سے پہلے انوائٹ کرتا ہوں, پلیز کم اینڈ وزٹ سندھ. جو ہمارے کے پی کے ہے, بلوچستان ہیں اور پنجاب کے لوگ ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس آئیں ہمارے ساتھ وزٹ کریں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. ہماری جتنی بھی سائٹس ہیں, جو ہمارے ہوٹلس ہیں, ہم ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس بھی دیں گے. ویری نائس. اور کیسے مل سکتے ہیں یہ بھی آپ پلیز ایڈ کریں, ڈسکاؤنٹ کیسے ملیں گے؟ پلیز ہماری سائٹ پہ وزٹ کریں, سندھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں, ہمیں کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ پنجاب, کے پی کے, بلوچستان کے اسکول کے بچے, کالج کے بچے, یونیورسٹیز وہ وزٹ کریں, ہم ان کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے, اور آپ نے بچوں کو ڈسکاؤنٹ دے دیا ہمارے شو کے توسط سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی فیاض علی شاہ صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ڈیفینیٹلی دیکھیں ڈسکاؤنٹ بالکل آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے, اور آپ اس کو اویل کریں. آپ پلیز پورے پاکستان کو ایکسپلور کریں, سندھ ضرور آئیں, کیونکہ میں نے جتنی گفتگو کی ہے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے خود بھی آج تک سندھ کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کیا. ہم رہتے یہاں پہ ہیں لیکن اپنے ملک کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. تو پلیز اگر کوئی آپ نے پلان بھی بنانا ہے, کوئی آپ نے انٹرنیشنل ٹرپ بھی کرنی ہے, کریں, لیکن پہلے اپنے ملک کو دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں, یہ بے حد خوبصورت ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.